Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, from comments I read, there are many candidates, those are attempting the exam again and again, but unable to clear it. So, in this video, we will discuss how we can be successful despite so many failures. Now, we have to distinguish between efforts and efforts in right direction. I will give you a simple example that will make you understand why people succeed and why people fail. Say I have to go from Delhi to Ambala. Naturally, I have to drive from Delhi to Ambala to reach Ambala. But if I take a road that is leading from Delhi to Bulandshahr and I drive on it, where I will reach? Bulandshahr, not Ambala. So I am driving, but I am driving in different direction than my destination. And this is the common mistake with the candidates. They are preparing, they are putting efforts, they are working hard, but they are unable to find the right direction. They are not aware about how they can hit the target. They are not aware which is the right path and which is the wrong path. And the moment you are able to figure out the right path, the moment you are able to understand the right path, the day you will put efforts on that, you will succeed. And that's why I created this channel. The purpose of this channel is right advice at right time. In each and every video, I endeavor to show you right path. And if the path is right, and if you will travel on that, you will definitely succeed. So how to find right path for you? For that, I have given you some basic weapons. One basic weapon is good mock test. Link is available on description and comment column. You have to take a mock test. If you take mock test recommended by you, there is no harm. Okay? So if you have to take a mock test, and if you take the mock test recommended by me, you are ultimately going to be gainer. Why? The moment you use this mock test, you attempt this mock test, you are able to figure out your weak areas. And the day you are able to identify your weak area and you work on it, you will improve day and out. And the moment you start improving on daily basis, that means you are moving in right direction. And if you are moving in right direction, you will definitely reach your destination. So it is as simple as it is. First is, you should subscribe to a good mock test that is suggested by me. Attempt a mock test, then figure out your weak areas, and then target these weak areas. This is one way. Second weapon is good source of current affairs. I have seen people, they are roaming here and there to figure out a good source. Some people, they read lot of newspapers. Some people, they read lot of news channels, watch news channels, or maybe doing some other ways to improve their current affairs. Yes, you can improve. There is no harm in it. But which is most effective way of doing current affairs? Effective means the less time, more knowledge. Because here time is important. Because in current affairs, syllabus is unlimited. So if I have to target something that is unlimited, I should always adopt a strategy where with minimum efforts, I am able to get maximum input or maximum output. And that's why I found out a good source for you
where current affair is in PDF form. It is already sorted from other sources. So it is saving your time and energy. If you subscribe it, you are benefited. Then if you are looking for banking job, there is one area where most people are weak, and if you become strong in that area, you can take lead over others. That is called banking awareness. And that's why I always insist you must watch banking awareness videos. So first is identification of our weak areas, then focusing on these weak areas, and then improving on daily basis. This is called right direction. And the day you will start running in right direction, that is the day when you are laying down this stepping stone for your success. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत कमेंट्स ऐसे होते हैं, सर मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं बार बार एग्जाम में बैठता हूँ, मैं पास नहीं होता हूँ. ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग पास नहीं होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्या जो पास नहीं हो रहे वो एफर्ट नहीं कर रहे, या जो पास हो रहे हैं सिर्फ वही एफर्ट कर रहे हैं? आंसर है नहीं. इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए. मान लीजिए मुझे दिल्ली से अंबाला जाना है, तो मुझे क्या करना है? ड्राइव करना है. अब मैंने रोड पकड़ ली है दिल्ली से बुलंदशहर की, और उस पर ड्राइव करना शुरू कर दिया, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? बुलंदशहर, अंबाला नहीं. मेरा डेस्टिनेशन क्या है? अंबाला. पहुंचा मैं कहाँ? बुलंदशहर. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे राइट रूट पता ही नहीं है. मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ड्राइव भी कर रहा हूं, मुझे पहुंचना था कहीं, पहुंच मैं कहीं गया. ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है असली जिंदगी के अंदर. वो कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी किए चले जा रहे हैं, मगर सही दिशा में नहीं कर रहे. और इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था. इस चैनल को क्रिएट करने का एक ही उद्देश्य है, राइट एडवाइस एट राइट टाइम. यदि मैं आपको सही दिशा दिखा पाता हूं और आप उस पर चल पाते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी. और वो जो हमारा सक्सेस रेट है वो इस बात को शो कर रहा है कि जिन लोगों ने ये कहना माना, आज उनको नौकरी भी मिली. तो दैट मीन्स अगर हम सही दिशा में चलते हैं तो इसी एफर्ट से हम कामयाब हो सकते हैं. अब सही दिशा क्या है? अब मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, ये कैसे मुझे पता लगेगा? उसके लिए मुझे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? एक अच्छा मॉक टेस्ट. अब आपने मॉक टेस्ट तो लेना ही है, ठीक है? बिना मॉक टेस्ट के तो कोई कंपटीशन पास नहीं हो सकते, सबको पता है. तो अगर आप मेरा बताया हुआ मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, मगर आप उसको लेते हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का है, तो वो आपकी कमियां ढूंढ के आपको बता देता है. और जब वो आपको आपकी कमियां ढूंढ के बता देता है तो अब आपका जो रोड मैप है वो क्लियर हो गया कि मुझे इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये मेरी कमी है. अगर मैं इस कमी को भर लेता हूं, इस कमी पे काम कर लेता हूं, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा. तो एक अच्छा मॉक टेस्ट आपने ले लिया, उसमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके अंदर अपनी वीकनेस ढूंढी और उस दिशा में काम किया. दूसरा जो वेपन मैं आपको सजेस्ट करता हूं वो है करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स क्या होता है? एक अनलिमिटेड सिलेबस है इसका. जितना मर्जी मैं पढ़ता रहूं, कोई गारंटी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा. तो होता क्या, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं. मतलब वो अलग अलग सोर्स से करते चले जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, उनका बहुत वक्त जाया हो जाता है. करंट अफेयर के लिए हमें वो सोर्स चाहिए जो टाइम इफेक्टिव हो. यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा उसमें से. पर यदि कम समय में अधिक नॉलेज एक्वायर कर लेंगे तो हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे. तो उसके लिए एक अच्छा सोर्स चाहिए हमें. वो हमने एक सोर्स आपको ढूंढ के दिया, और टाइम एंड अगेन वो प्रूव भी कर रहा है. अभी SBI जूनियर एसोसिएट में कितने क्वेश्चन आए उस सोर्स से. तो यदि आप उस सोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हो और उससे पढ़ते हो तो आप कम समय में अधिक चीजें जान के और लोगों से आगे निकल जाते हो.
तीसरी चीज क्या है, जो आपके कंपटीटर है उसमें अधिकांश लोगों की बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन उसमें आने ही आने हैं। तो यदि मैं ये नॉलेज एक्वायर कर लेता हूँ, इसमें मैं एफिशिएंट हो जाता हूँ, तो मुझे लीड मिल गई। और कंपटीशन जीतने का क्या मतलब है, दूसरों के ऊपर लीड लेना। तो वहां मैंने आपको वीडियोस दे दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर 10-15 वीडियो आप रोज के देख लेते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, तो आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए। और जब आप आगे निकल गए तो आपको नौकरी मिल गई। तो ये बहुत आसान है। आसान कब है, जब मैं इस चीज को समझ जाऊं और मैं इस पे चलना शुरू कर दूं। और कठिन है अगर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूं और मैं वही करता रहूं जो पहले से करता आ रहा हूं और उससे मुझे सफलता नहीं मिल रही। अगर मैं एक तरीके से तैयारी कर रहा हूं और उससे मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो इससे मेरे को क्या लेसन मिलता है कि मुझे अपना रास्ता बदलना है। अब मैंने ड्राइव किया, मैं दिल्ली से बुलंदशहर पहुंच गया, मुझे पहुंचना था दिल्ली से अंबाला। तो मैंने क्या लेसन सीखा कि मैंने गलत रास्ता अपनाया है। अगली बार मैं गूगल सर्च से ये ढूंढ के जाऊंगा कि दिल्ली से अंबाला की रोड कौन सी है। ये मुझे लेसन मिला। और जब मुझे लेसन मिला, मैंने गूगल की हेल्प ली और मैं सही रास्ते पे चढ़ गया। उसके बाद मुझे रास्ता पता लग गया। तो ये चैनल भी आपके लिए क्या काम कर रहा है, एक गूगल सर्च का काम कर रहा है। वो आपको सही रास्ता बता रहा है। चलना ना चलना आपका काम है। और जो चल रहे हैं उनको सफलता भी मिल रही है। हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी मिल चुकी है। वो बार बार शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और उनके जो थैंक्स के मैसेज हैं, मैं आपके मोटिवेशन के लिए वो इस चैनल के वॉल पे भी डाल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि ये जो रास्ता है, क्या इससे किसी को कामयाबी मिली है। और जब आपको पता लगता है कि ऐसे रास्तों से हजारों लोगों को कामयाबी मिली है, तो आपके मन में एक इच्छा शक्ति पैदा होती है कि हाँ, मैं भी इस रास्ते पे चलकर देख सकता हूँ। हर्ज कोई नहीं है ना, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर मेरे तरीके से कर लेंगे तो हर्ज कोई नहीं है, फायदा ही होने वाला है। मगर पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा कि इस मेथड से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। और उसका टेस्ट क्या है, बाकी लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर काफी लोगों को फायदा हुआ तो इसका मतलब रास्ता तो सही है। अब मुझे चल के देखना है इसके ऊपर। और अगर मैं चल पक निकलता हूँ तो हो सकता है मैं भी कामयाब हो जाऊं, क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो गारंटी देता है आपको। ठीक है ना, मान लो मैंने दिल्ली से अंबाला का रास्ता पकड़ भी लिया और रास्ते के अंदर मैं सो गया, तो फिर भी नहीं पहुंचूंगा। रास्ता भी मिल गया मगर मैंने रेस्ट कर लिया, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर रास्ता क्या करेगा। तो रास्ता तभी हमारे काम आएगा जब मैं उस पर एफर्ट भी कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।